preparations of alcohols. ROH. First method is simply by alcoholic hydrolysis. By alcoholic hydrolysis of alkyl halides. Alkyl halides. That simply we have to boil these alkyl halides with alcoholic KOH or KOH or NaOH. First one, that is RCl, alkyl halides are hydrolyzed in presence of NaOH. Products are simply alcohols. इसकी हमने बात की थी NaCl. So this is simply a substitution reaction. Now second one is hydration of alkenes in presence of H2SO4. So hydration of alkenes in presence of H2SO4 are CH double bond CH2 plus H2O in presence of H2SO4. कल हमने बात की इसकी. क्या बनता है? RCHOH and CH3 plus और कुछ बनेगा. इसमें क्या बनता है? एक्चुअली हमें अल्काइल सल्फेट्स इसमें इंटरमीडिएट है. फाइनली फिर हमें अल्कोहल्स मिलते हैं इसमें. सो दिस इज alcohol. 2. Now the third one is reduction of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones either by using catalyst that is nickel, platinum or palladium, or in presence of simply alcohol NaC2H5OH, or by simply as hydrides, that is lithium aluminum hydride or sodium borohydride. See, reduction of aldehydes and ketones. We have two methods. We can simply use catalysts like nickel, palladium, or we can use directly lithium sodium hydrides. First one. Let's use this one, that is in presence of catalyst, that is nickel, platinum and palladium, plus that is the reaction is affected by nascent hydrogen. So aldehydes, aldehydes की formula क्या है? RC double bond OH in presence of nascent hydrogen, using catalyst nickel, platinum or palladium. Since what actually happens in this case, one of the hydrogen goes to this oxygen, the other one will go to the carbon. समझ आ रहा है? See, one of the hydrogen will be present on the oxygen and next hydrogen on carbon. जरा बता प्रोडक्ट क्या होगा फिर? और CH नहीं, CH यहाँ से एक हाइड्रोजन और अपना CH2OH.
So we have alcohols. We have alcohols. This is simply the reduction of, but this reaction occurs at a very much high temperature, that is 413 kelvins. समझ आ रहा है? We can use, instead of this catalyst, we can also use RC double bond OH. We can use lithium aluminum hydride. This one, it simply donates hydrogen as hydride, that is H negative. H negative, two hydrogens. Again, one of the hydrogen will go with the oxygen. Next one is on carbon. So we will get RCH2OH again. So in both the cases, the products are alcohols. So the product is same, that is product is alcohols. Now since we have reduced aldehydes in presence of nickel palladium or lithium aluminum hydride. Ketones are also reduced by the same reagents. So reduction of ketones. जरा बताओ फॉर्मूला क्या है कीटोन्स की? RC double bond O है ना R. So we can write like this, RC double bond O CH3. This is simply a ketone. Or we can also write it like this, R general, RC double bond O R. This is the functional group, C double bond O. But in case of aldehydes, we have CHO. Now, reduction of ketones. First, so in both the cases we can use nickel palladium, or we can use this lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride is strong reducing agent, so that's why it reduces most of the functional groups. ये वाला lithium aluminum hydride, it almost reduces all the functional groups. There are some exceptions. Again, अगर हम ये वाला यूज करेंगे, इसमें क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन्स, निकल पलेडियम, इसके साथ क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन्स. बट अगर हम ये वाला यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है? ये हाइड्राइड देता है, ये वाला H नेगेटिव. समझ जा रहा है? सो इन बोथ द केसेस व्हाट द प्रोडक्ट इज, दो हाइड्रोजन जब ये डोनेट कर रहे हैं, एक कहां जाएगा? एक कार्बन पर जाएगा, दूसरा कहां पर जाएगा? ऑक्सीजन. फिर प्रोडक्ट क्या होगा? COH, ये वाला होगा CH एंड CH3. अब देखो दो में क्या फर्क है? एल्डिहाइड्स भी रिड्यूस हो गए और कीटोन्स पे. लेकिन एल्डिहाइड्स में अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल्स बन गए. दिस इज सिंपली ए प्राइमरी अल्कोहल, while in case of ketones we have secondary alcohols are prepared. So by reducing these ketones we will synthesize secondary, while as reducing these aldehydes we can get primary alcohols. 3. Now the fourth one is, यहाँ तक लिखा. Now the fourth one is reaction of Grignard's reagent. याद है क्या है Grignard's reagent? मैंने बताया था जब मैंने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन किसके साथ की? मेटल्स के साथ. वहां पर Grignard's reagent की हमने बात की. रिएक्शन ऑफ RMgX विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. यहां पर हम देखेंगे रिएक्शन विथ aldehydes and ketones. Reaction with aldehydes and ketones. This is simply a nucleophilic addition. RMgX acts as a nucleophile. Reaction of RMgX with aldehydes and ketones followed by फिर क्या करना है इसके बाद? Followed by acidic hydrolysis.
hydrolysis. This is important reaction, that is HCl/H2O. हाँ, अब क्या क्या इसमें है? RMGX is Grignard's reagent. अब होगा क्या? This Grignard's reagent will add to these aldehydes and ketones and addition product is formed. अब देखो aldehyde से this one RCO, पहले हम aldehyde लेंगे उसके बाद ketones RCO डबल बॉन्ड H, हाँ अब ये वाला RMGX. अब देखो इसमें क्या है? कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड है C, कार्बन और मेटल. मैग्नीशियम क्या है? मेटल इसमें. सो दैट्स व्हाई दिस इज आयोनिक इन नेचर. कार्बन यहां पर जो होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड और सिंपली इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ दिस R. It attacks on this carbon, aldehydic or ketonic, because this aldehydic or ketonic is itself electrophilic in nature. Listen why? Because of this oxygen. समझ आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? कार्बन से. दैट मीन्स इस कार्बन क्या क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ क्या है कार्बन पर? नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज व्हाई दिस इज सिंपली ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें. हाँ, अब बताओ जब ये अटैक करेगा क्या बनेगा इसमें? यहां पर क्या होगा? ये R इस कार्बन पर अटैक होगा. दिस पॉजिटिव पार्ट विल गो टू द ऑक्सीजन. जब भी यहां पर अटैक करेगा तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. हाँ, अब बता क्या होगा? RCO नेगेटिव, ठीक. और यहां पर क्या है? दूसरा R है ये वाला. So say that is this is double dashed R. Double dashed R. और क्या है इसके साथ? एक अपना हाइड्रोजन. So this is RCH R. Now this part MgX will add to this OMgX. This is simply an addition product. This is simply an adduct or addition product है. Addition प्रोडक्ट. अब मैंने इसके बाद क्या लिखा यहां पर? रिएक्शन ऑफ RMGX विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. फिर क्या मैंने लिखा? फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे. हाइड्रोलिसिस एसिडिक बट एसिडिक. सी अब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे. सो दिस इज HOH, दैट इज OH नेगेटिव बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl. अब यहां पर मुझे बता क्या होगा? यहां पर जरा बता क्या होगा? सी दिस पार्ट, ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला नेगेटिव है, OH नेगेटिव. ये कहां जाएगा? ये क्योंकि इस पर मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसके साथ जाएगा. यहां पर अगर आप देखोगे Mg इज पॉजिटिव तो OH विल बी विथ Mg और यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज. तो हाइड्रोजन कहां पर होगा? ऑक्सीजन पर. सो वी विल गेट, हाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट? RCH R', ठीक है, OH. फिर क्या बनेगा? ये वाला है MgXOH. सो ये क्या बन गया? ये अल्कोहल है लेकिन कौन सा? दिस इज 2 डिग्री. दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल. सो इसमें क्या होगा? जब हम RMGX की रिएक्शन किसके साथ? ग्रिग्नार्डस रिएजेंट करेंगे किसके साथ? एल्डिहाइड्स के साथ. तो हमें बनेंगे क्या? 2 डिग्री अल्कोहल. लेकिन अब हम देखेंगे अगर हम कौन सा करेंगे यूज? कीटोन्स इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड्स. फिर क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे let us see the nucleophilic addition of RMGX to ketones. So this is ketone, simply R C double bond O R plus क्या होगा? RMGX पॉजिटिव और नेगेटिव. और यहां पर भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है. जरा बता ये वाला कहां जाएगा? R will attack to the carbon atom
और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगी, ये वाली शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हाँ फिर बता एडिशन, अगेन एडिशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म आर सी, दिस अगेन एडिशन आर। जरा इधर देखो पहले, अपने इसके कितने आर है, 1 और 2, फिर यहां से 1 आ गए, कितने हो गए 3। सो वी हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स, और यहां पर होगा OMgX पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर क्या होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब मुझे बता क्या बनेगा प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऑक्सीजन, और ये बनाएगा MgXOH। हाँ जरा बता, RCOH R और यहां पर क्या होगा, MgOH एंड X। अब ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। सो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब है कि अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल्स के भी पूछा जाएगा बना दो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कीटोन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, पहले वाले में क्या करना था, एल्डिहाइड यूज। लेकिन अगर यहां पर आपको प्राइमरी बताया जाएगा, यहां पर क्योंकि हमने एल्डिहाइड का देखा, उसके साथ क्या बन गया, सेकेंडरी। अब इसके साथ क्या बना, कीटोन्स के साथ। लेकिन अगर प्राइमरी बनाना होगा उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ये है फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मूला HC⋯OH। उसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता है, सिंपली क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन। अब यहां पर थोड़ा करेंगे रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, HC⋯OH और MgX पॉजिटिव नेगेटिव। जरा बताइए क्या बनेगा। सो वी विल गेट RCHOH CH2 plus followed by hydrolysis, this one HCl/HOH, और यहाँ क्या बनेगा, MgXOH। सो इसमें क्या बनेगा, प्राइमरी, ये वाला बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ रहा है। फिफ्थ वन इज ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन देन हमें करनी है क्या, ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन किससे हो जाती है, स्पेसिफिक रिएजेंट दैट इज नोन एज B2H6, दिस इज नोन एज डाइबोरैन। से अब रिएक्शन क्या होती है इसमें, सिंपली दिस B2H6 reacts with alkenes, forms alkyl boranes. Finally the alkyl boranes are oxidized in presence of H2O2. That is known as hydrogen peroxide. So इसमें क्या होगा, alkenes simply react with B2H6, that is boron hydride or diboran. फॉर्म क्या बनता है, इंटरमीडिएट अल्काइल, या ऐसे में लिखूंगा ट्राई अल्काइल बोरेंस followed by oxidation with H2O2। हाँ किससे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, H2O2 से। अब जरा देखो रिएक्शन क्या है, सिंपली अल्केन्स, ये वाला ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 BH26। अब होगा क्या, विल गेट, यहां पर देखो CH3
CH2 whole thrice B. This is known as trialkyl बोराइन, trialkyl. So ये मैंने बताया कि कैसे trialkyl बोराइन, ये वाला trialkyl बोरेन्स बनते हैं, समझ आ रहा है? अब इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय इस वाले को हो जाएगी क्या? ऑक्सीजन H2O2 से। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसमें जो H2O2 देखो, हाँ ये वाला लिखा आपने, जल्दी से लिखो। अब देखो ये ट्राइअल्काइल बोरेन कैसे बनता है, ये मैंने बताया। फिर कौन सा आता है? H2O2 that undergoes homolytic fission. Because of homolytic fission one of the OH will go with carbon, और जो बाकी यहां से OH है वो कहां किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? बोरान के साथ। So we will get this primary alcohol plus BOH, बट ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर कौन सा? H2O2 के यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दो। So we will write here 2, ये दो होंगे। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये वाले अल्काइल कितने हैं? 3 हैं। So we will balance, ये 3 यहां पर है। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बाद। So we will get CH3 CH2 OH plus BOH whole thrice. This is known as boric acid. Boric acid. समझ आ रहा है? So this was fifth method. Now sixth one is reduction of, इसमें reduction of esters and acids. Esters and acids. Again the reagents are same, जो मैंने पहले reduction of aldehydes और ketones में बताया। उसमें क्या क्या मैंने बताया? Catalysts that occurs in presence of nickel, platinum, palladium, और वहां पर क्या होता था? नेसेंट हाइड्रोजन। या दूसरा मेथड है कि हम कौन सा यूज करेंगे? हाँ, हाइड्राइड्स में से कोई। तो अब जनरली वो मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पर जल्दी से RCOH is acid, so we can use H2, that means we are using nickel, palladium. हाँ, क्या होता है यहाँ पर? क्या होगा? यहाँ से वाटर भी निकलता है। वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी ऑन द कार्बन, और एक किसके साथ जाता है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जो जाएगा वो नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ से एक और हाइड्रोजन ले लगा और वाटर बनेगा। समझ आ रहा है? सो वी विल गेट RCH2OH और वाटर बन रहा है। और क्या बन रहा है? वाटर। बट इंस्टेड ऑफ, ये किससे होता है? निकल प्लेटिनम। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज करेंगे या इथेनॉल, सोडियम, ये भी यूज कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है हर एक को। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की फॉर्मूला क्या है? याद है? वो फॉर्मूला याद है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर्स। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, अगेन द सेम reagents। लेकिन अगर ये वाला कैटालिटिक वाले हम इसकी बात करेंगे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम होगा, तो उस टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है, याद रखना। लेकिन ये वाला, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन, दिस इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। सो हाँ, अब जरा यहां बताओ, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो कहां हो जाएंगे? सी यहां पर पहले देखो, ये जो एक हाइड्रोजन कहां जाएगा? एक कार्बन पर जाएगा, समझ आ रहा है? फिर एक इस पर होगा, तो क्या बनेगा? RCHOH। लेकिन यहां से भी ROH, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जाएगा। सो वी विल गेट दो टाइप्स बनेंगे, RCH2OH, ये एक अल्कोहल होगा, और दूसरा होगा ROH। सो इसमें जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल्स है, वो यील्ड है, वो बहुत ज्यादा है। किसमें? रिडक्शन ऑफ दिस एसिड्स एंड एसिटर्स। तो अब यहां पर क्या होता है? एसिड में सबसे पहले क्या बनेंगे?
जब रिड्यूस हो जाएंगे तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, उसके बाद फिर रिड्यूस होता है एल्डिहाइड किस में, अल्कोहल्स में। दोनों की इसमें एस्टर्स और इस एसिड्स में।